Good morning, dear students. I Good hope the morning, screen. sir. Morning, sir. I hope the screen is visible to you all. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. So today's topic, as I already told you, that we are going to learn today the division from the beginning part. So let us have a quick revision. Then after that, we are going to start today's topic also. So division basically, when we do division, basically, dear students, when we go through the longer method or the long division method, it really takes time, as we know don't know the multiplication table of the bigger number like 88, 95, 99. So again we get some difficulties. So let us start from the beginning, how to divide from the root points. So the first thing is already in front of you. So when we divided with a single digit, how to do this? At first we have to write all the number, and the question was 4327, and we are going to divide it by 3. So 4327 we will be writing here 3. So 3 1 ja 3. So 4 minus 3 become, that remainder 1 is written here. So this become 1 and 3 become 13. So again what to do? So 3 4 ja 12. So 13 minus 12 become how much again? 13 minus 12 become 1. So again that 1 is written here. Again this become 12. So again 3 4 are 12. So 12 minus 12 becomes 0. Nothing is remaining. Directly 7 is remaining. So directly we can write that. One more 0 also we can put it here, as 2 has not gone. Okay. So the quotient is equal to 1440, and the remainder is equal to only 2. I hope the thing is clear to you. Yes, sir. No, Because sir. 7 is not yet divided, that's why. Okay, one more example I'm taking. 3 5 2 4 divided by 5 we are doing. Okay, so what to do? Directly at first we can tell that 5 7 ja 35. Okay, so 5 7 ja 35. After that nothing is remaining, so this becomes 0 2. Then will it go? No. Then we have to write 5 zeros are 0. So again 2 and 4 become 24. Then 5 4 is 20. So 24 minus 20 become how much? 4 only. So 4 4. is the remainder, 704 is the Yes. quotient. So it is a so simple method of what we follow. Okay, this is single digit which is done by every people. Now the second is division by 5. So when we divided by 5, first we have to take that number. Same number has to be multiplied with 2. Then we will get 70842. And as we have to divide it by 10 also, then one digit back we will put the decimal before one digit. I hope the division by 5 is clear to you. One more question. 327 multiply, oh sorry, divided by 5. What to do? The first procedure is multiply by 2. 7 7 14 4 1 2 2 4 plus 1 5 3 2 just 6. Done. And after before one decimal place or one place we need to put the decimal. So answer is equal to 65.4. Is it clear? Yes, sir. Yes, With the sir. example, now we are Yes, moving sir. forward. When we divide any number by 9, then how to do? When we divide any number by 9, then we have to take care. First of all, 6 has to be taken. Then 6 plus 5 become directly 11. All the procedures are written here, 11. Okay, then 11 plus 4 become 15. 15 plus 5 become 20. 20 plus 8 become 28. Okay, but as we are dividing it by 9 only, so how much multiple it is? 28 is. 28 is the third multiple of 9, because 9 3s are 27. So it is more than third multiple. So what to do? As it is a third multiple, so we have to add 3 here. So 28 plus 3 become 31. So I have written 31. But as we are dividing it by the 9, so it is a single digit. Is it a single Yes, digit? sir. Yes. So we cannot write the 31, but in place of that, we can write 1, then 3 will be taken here. So 20 plus 3 become 23. Again, we will be writing 3. Again, 2 will be copied. So 5 plus 2 becomes 7. Again, 1 will be copied. So 11 plus 1 become 12. So 12 will be writing, and finally 1 will be taken, copied. So 6 plus 1 becomes 7. So the answer is equal to 7273 is the quotient, and 1 is the remainder. Okay. So this is the Yes, very sir. good method what we follow. I hope the thing is clear. Yes, sir. So 9 is same, double line is also same, but we need to do the partition of 2 2 from right hand side. Okay, so this is the division by 9 9, and I'm just discussing about the 9 series, 9 double line, triple line, double line like that. Okay, so we have to prepare. 58 is the first pair, 54 second pair, and 6 is remaining, so that is the third pair.
So at first 6 I have to drop. 6 plus 54 become 60. 60 plus 58 become 118. But 118 is the first multiple of 9. So first multiple, so first is has to be added with 118. So 118 plus 1 become 119. Is it clear? So that's why I have copied here 19. Sorry, 119. So 19 is copied here because it is 2 digit. So we can keep 2 digit, no problem. Then 1 is copied here. 60 plus 1 becomes 61, and 6 is here already. So no problem. Okay, clear? So the question becomes Yes, sir. 661 and the remainder is 19. This is already discussed Yes, sir. yesterday. Yes, Now sir. we are moving forward triple nine wala digit. So we have to prepare the group of 333. Clear? So when we prepare the group of Yes, sir. 333, first of all 6 is copied. 6 plus 745 becomes 751. 751 plus 458 is equal to 1209. लेकिन ये क्या है? 999 का फर्स्ट मल्टीपल है. So we have added 1, so 1210. So 1210 और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग एक टाइम पे कितना डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं? 3 डिजिट. तो 210, तो 1 इधर शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होने के बाद कितना हो गया? 751. 751 प्लस 1 बिकम हो गया 752. और यहाँ पे कुछ कॉपी नहीं किया गया. व्हाई? बिकॉज इट इज 999 और 3 डिजिट ही हो रहा है. यदि ये 4 डिजिट होता तो यहाँ से फिर यहाँ पे कॉपी जाता, लेकिन 3 डिजिट ही हो रहा है, तो नो टेंशन. 752 है और 6 का 6 है, तो 6751 हो गया क्वोशिएंट और 210 हो गया हम लोग का रिमाइंडर. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. Yes, sir. Sir, quotient is of how many digit? क्वेश्चन यहाँ पे ये डिटरमाइन करेगा ये कितना डिजिट का है. 3 डिजिट का है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर भी 3 डिजिट होगा. 3 से 2 डिजिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 डिजिट तो होना चाहिए. ठीक है ना? Sir, and quotient? सॉरी, क्वोशिएंट. Quotient. क्वोशिएंट Yes, का ऐसे sir. कोई गारंटी नहीं है. Yes, sir. ठीक है ना? देखो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है. यहाँ पे कितना है? 336 प्लस 1 7. 7 डिजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं 999. कहने का मतलब है इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 डिजिट. तो यहाँ पे देखो हम लोग 4 डिजिट के साथ यदि 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 7 डिजिट भी आ सकता है, नहीं तो 8 डिजिट भी आ सकता है. ओके ना? 7 डिजिट आ सकता है, नहीं तो यदि एक कैरी हो गया तो 8 डिजिट आ सकता है. तो हम लोग यहाँ पे Yes. ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट और 999 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 डिजिट वाला है, तो आंसर क्या आएगा? लगभग 4 डिजिट ही आएगा. तो ये एक तो छोटा सा कैलकुलेशन है जो मेंटली हम लोग कर लेते हैं और मेंटली इसको हम लोग सीख लेते हैं. क्लियर? Sir, So Yes, Selvi, sir. Yes, sir. yes, Selvi, yes, sir, I have doubt in multiple. okay. मल्टीपल कहाँ Sir. से आ गया अभी? Sir, multiply. मल्टीप्लाई का. ओके, नो प्रॉब्लम. एट द एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल बी टेलिंग यू द मल्टीप्लिकेशन. ओके, Yes, उसके sir. लिए कोई दिक्कत नहीं. once the recording close then I will tell you. Now we are moving forward. Division by same digit of 9 series. देखो ये कितना डिजिट का है? 3 डिजिट का. ये भी कितना डिजिट का है? 3 डिजिट का. जब दोनों 3 डिजिट का हो तो इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल इजी होता है, और वो होता है डायरेक्टली 458 को लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, उससे पहले डेसिमल और 0 पुट कर देंगे, और इसका अल्टीमेट वैल्यू क्या है? 458 रिपीट हो रहा है, सॉरी 458 रिपीट हो रहा है ना. ओके, देन 458 458 458, ये बार बार डॉट 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 मतलब ये रिपीट कर रहा है. ओके, Yes, sir. क्लियर? Yes, यहाँ पे sir. कितना डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6. ये भी कितना डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6. क्लियर? ओवर टू यू. ओके, Yes, उसके sir. बाद जब 6 और 6 है तो सीधा ये नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा के पहले से डेसिमल और 0. तो 897563, देखो 897563 897563, और वही बार बार रिपीट कर रहा है. सो डिवीजन बाय सेम डिजिट ऑफ 9 सीरीज. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. दैट्स ग्रेट, सो सिंपल. नेक्स्ट, डिवीजन बाय डिफरेंट डिजिट ऑफ 9 सीरीज. ये देखो 2 डिजिट का है और ये है 3 डिजिट है, और यहाँ पे ये खाली है. ठीक है ना? तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? sir. जो खाली है कोई दिक्कत नहीं, वहां पे जस्ट 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है. तो वही है, 58 को इधर रख दो और उससे पहले 0 डाल दो और बार लगा दो ऊपर. ठीक है ना? और यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती से लिख दिया हूँ But sir, answer. 058. ओके, यस, वो गलती से लिख दिया हूँ. 058 बार कहने का मतलब क्या है? 0.058 058 058, और ऐसे ये रिपीट करते रहेगा. क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. यस. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 6 डिजिट है. देन हाउ टू डू कैलकुलेशन? यहाँ पे 2 डिजिट रहना था यहाँ पे,
तो 2 डिजिट के बदले क्या मैं 2 to 0 पुट कर सकता हूँ, Yes, sir. और बिल्कुल वही 2 to 0 यहाँ पे प्लेस हो गया, बाकी सब चीज सेम है। 007563 के ऊपर पूरा बार लग गया, तो 007563 007563 और डॉट डॉट डॉट। तो बिल्कुल क्लियर है, डिवीजन बाय द डिफरेंट डिजिट ऑफ 9 सीरीज। Yes. Yes, sir. ओके, उसके बाद डिवीजन बाय 25 पढ़े हो, इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ कि इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से ये आ गया, और डिवाइड 2 to 0 है, तो 2 ठो के प्लेस के पहले डेसिमल लगेगा। फिनिश। Yes, sir. Yes. डिवीजन बाय 50, डिवीजन बाय 50 के लिए क्या करेंगे, 50 से क्या मल्टीप्लाई करने से 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई करने से। तो पहला Yes, 2 से sir. मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ठो प्लेस पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि जब भी डिवीजन में 50 करते हैं 50 का बेस नंबर क्या होता है 100, ठीक है ना, नियर बाय 3 डिजिट वाला बेस Yes, नंबर होता है sir. 100। तो 2 डिजिट पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। सो डेसिमल बिफोर 2 डिजिट, सो आंसर इज क्लियर नाउ। Yes. डिवीजन बाय 125 जब करेंगे तो सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड इन द सेंस 3 प्लेस पहले से डेसिमल पुट कर देंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। Yes, sir. That's great. Next, we are moving forward. Division by 11. So those who are having any doubt, it is just going to be helpful for them. यहाँ पे जो साइन दिया गया, इसका साइन का मतलब है माइनस। सबसे पहले 3 को 3 से डायरेक्टली कॉपी करेंगे, उसके बाद 5 से 3 को माइनस करेंगे। दिस इज माइनस, हाँ, तो 5 को 3 से माइनस करने से क्या होगा, ये इधर जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 7 से 2 को माइनस करेंगे, आएगा 5। सो 9 से फिर 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 4। तो लास्ट वाला डिजिट जब ये 11 है, तो 11 का क्या करते हैं, 2 डिजिट है, लेकिन हम लोग 1 डिजिट लास्ट में कैलकुलेट करते हैं 4 से। तो ये 4 है रिमाइंडर, और बाकी जो बचा 3 to 5 वो है क्वोशिएंट। बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. नेक्स्ट 7269 divided by 11 is equal to, dear student, this is going to be provided to you in the form of PDF. Don't issue, कोई भी स्क्रीनशॉट जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत, और अभी कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा इस चीज का, क्यों पता है ना, अभी से यदि स्क्रीनशॉट रखोगे तो बार बार रेफरेंस करके देख देख के कर लोगे। सबसे पहले ना इसको मेमोराइज करो, और एक बार मेमोराइज करने के बाद सब कुछ माइंड पे हो जाएगा, फिर ये कब इमरजेंसी हो तो जरूरत पड़ना चाहिए, और पहले से Yes, इसको sir. जरूरत करोगे तो नहीं है, उसीलिए मैं पहले से ही नहीं दे रहा हूँ। ओके ना, सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न। और जब नहीं याद रहेगा, जैसे कि बाद में कोर्स खत्म करने के बाद पता चलेगा कि सर 11 का तो थोड़ा सा भूल गया मैं, तो ये पीडीएफ उस समय काम आएगा। इमरजेंसी के लिए इसको रखो, और हर टाइम देखते रहोगे तो वो माइंड पे नहीं रहेगा। फॉर्मूला को देख के यदि भी कोई भी मैथ्स का सॉल्यूशन करते हो तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक उसको बिना मतलब याद किए यदि करोगे तो इजी हो जाता था, कि क्योंकि एग्जाम में याद ही करना है। तो अभी ये वाला डिजिट को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले 7 आया, 2, उसके बाद देखो 2 से 7 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो 7 से एक कॉपी गया, तो क्या हो गया, ये 2 बन गया 12, और 7 क्या बन गया, 7 कट के बन गया 6। उसके बाद फिर 12 से 6 गया, कितना हो गया 6, उसके बाद 6 से 6 गया 0, और उसके बाद 9 से 0 गया फिर 9। बिल्कुल, तो पहला वाला 3 टू डिजिट जो है 660 वो हो गया क्वोशिएंट, और लास्ट वाला हो गया रिमाइंडर। सो आई होप एवरीबॉडी आर क्लियर अबाउट द डिवीजन बाय 11। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन बाय अदर देन 11। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 से 19 तक का सीरीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाकी का भी सीरीज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि डिवीजन बाय 12 to 19 कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो 12 से डिवाइड करूंगा, ये 12 का यूनिट प्लेस क्या है 2। सबसे पहला काम है इसको -2 लिख दूंगा यहाँ पे, ये आज का नया टॉपिक है, इज इट। इसका प्रैक्टिस Yes, भी sir. करेंगे, Yes. कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 है इसको लिख देंगे हम लोग -2। उसके बाद जो पहला वाला डिजिट है 4, उसको तो डायरेक्टली अंडरग्राउंड कर देंगे, कोई दिक्कत है No, sir. नहीं है। उसके बाद ये जो 4 है इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया -8. वेरी गुड। तो -8 यहाँ पे देखो सेकंड वाला स्टेप में लिखा गया -8। सो 9 से 8 गया, कितना हो गया 1, है ना, 9 से 8 Yes, गया sir. 1, है ना। उसके बाद फिर 1 को फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना होगा -2। तो यहाँ पे फिर -2 लिख दिया। सो 8 से -2 गया, कितना होगा 6। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि 41 क्वोशिएंट है और 6 रिमाइंडर है। तो इजी है ना,
Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला एग्जांपल भी करते हैं ताकि और भी समझ में आए। ये जैसे 12 है, यहाँ पे 13 किया जा सकता है, 17 किया जा सकता है, मतलब अप टू 19 तक का कोई भी नंबर लिखो। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़े थे कि जैसे हम लोग इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस है 3, तो इसको सीधा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -3। ओके, उसके बाद देखेंगे -3, सबसे पहला वाला काम ये है कि 5 को सीधा कॉपी कर लो, किया गया है 5 को कॉपी। उसके बाद Yes, sir. दूसरा वाला फॉर्मूला ये बोलता है कि 5 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो रहा है 15। Yes, sir. 15 को लिखोगे यहाँ पे, लेकिन 6 से 15 जा रहा है क्या? 6 से No, 15 sir. जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को एक कम कर देंगे, क्या हो गया 4। 5 क्या बन गया, ये जो ऊपर वाला जो 5 है ये क्या बन गया 4 बन गया। तो कैसे हो गया, जब यहाँ से एक कॉपी किए हम लोग तो यहाँ पे ये नया वाला नंबर क्या हो गया 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है 4 उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो 4 3 आ गया -12। तो 16 से -12 जब माइनस किए हम लोग तो क्या हो गया 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 जा 12 Sir, और 15 हमको यहाँ पे लिखना था 12, लेकिन 4 से 12 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, 4 को एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 -3 जा 9, तो अभी 14 से 9 जा रहा है क्या, यस। सो 14 से 9 जा रहा है, तो क्योंकि देखो यहाँ से एक कॉपी करेंगे ना, यहाँ से एक कॉपी करेंगे तो ये यहाँ से ये कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 14 - 9 हो जाएगा 5, तो 5 हो गया रिमाइंडर एंड 43 इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो ये डेकोरेशन करके किया गया है, मैं एक नॉर्मल वाला कर लेता हूँ। 5 7 3, ध्यान देना इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, कोई भी नंबर बोलो 11 से 19 के अंदर। Sir, 17. ओके 17 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 3 को नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइडेड बाय 17। तो सबसे पहला बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या है, -7. 7. ऑब्वियसली 7 ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा -7 लिखूंगा। सबसे पहला चीज है 5 को यहाँ पे अंडरग्राउंड कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 5 - 7 जा -35. -35 है, तो 7 से 35 जाएगा क्या, No, sir. No, sir. नहीं जाएगा। तो 5 को काट देंगे 4, तो ये हो गया 17, एक काटे तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो 17 भी तो नहीं जाने वाला। तो फिर देखो 4 बन गया, 4 7 जा कितना होगा 28, तो 17 से 28 माइनस होगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर 4 को काट के हम लोग करते हैं 3, तो 3 7 जा कितना हो गया, देखो 3 किए तो यहाँ पे आ गया 2, मतलब यहाँ पे आ गया 27। देखो 5 से 3 कर दिया मतलब 2 कटा और वो 2 यहाँ पे ऐड हो गया, तो कितना हो गया 27, ठीक है ना। तो अभी ये 3 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना होगा 3 - 7 जा -21, तो 27 भी नहीं जाएगा 35 से। तो 27 से अभी 21, आंसर कितना आया, 7 से 1 गया 6, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद देखो 7 6 जा कितना होगा, ये जो 6 निकला है इसको फिर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा तगड़ा वाला नंबर ले लिए हम लोग, तो 6 से 7 जाएगा। देखो ये तो हम लोग छोटा छोटा नंबर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा वाला नंबर के लिए काम आता है, देखो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो 6 है, ये 6 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 42, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, सिर्फ 3 से 42 जाएगा नहीं, तो 6 को कर देंगे हम लोग काट के 5, कितना हो जाएगा फिर 5 7 जा 35, तो फिर 13 से 35 तो नहीं जाएगा, Yes, sir. फिर 5 बन गया 4, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2 काटे तो यहाँ पे हो गया 23, 23 से 28 जाएगा नहीं जाएगा, No, तो sir. 4 को फिर कर देंगे हम लोग 3, तो 3 देखो 6 से हो गया 3, तो ये कितना हो गया 33, यहाँ पे 3 कट रहा है तो यहाँ पे 3 बढ़ भी तो रहा है ना 33, तो वैसे ही, तो 3 7 जा कितना होगा 21, 7 3 जा 21 ना, तो Yes, यहाँ पे sir. 33 से 21 को माइनस करवाया, तो आंसर कितना होगा
12, बस खत्म। यहाँ पे नीचे है 3, यहाँ पे नीचे है 3, तो ये दोनों मिलके हो गया 33 हो गया कोशिएंट और 12 हो गया रिमाइंडर। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है। एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि सभी को थोड़ा इजी भी लग जाए। 1 7 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 14 से, डिवाइडेड बाय 14 से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे 1 7 9, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे -4। ठीक है, सबसे पहला वाला काम है 1 को 1 टाइप का लिखेंगे, फिर 1 इंटू -4 कितना होगा, -4, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे -4, तो 7 - 4 कितना होगा, 3, है ना। उसके बाद 3 को फिर क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा कितना हो रहा है 12, तो 9 से 12 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 3 को No, कर sir. देंगे 2, तो ये हो गया 19। जब ये 2 कर दिया तो ये हो गया 19, तो 2 -4 जा कितना होगा, -8। सो 19 से 8 गया, आंसर कितना हुआ, 11। 11. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 और 2 है, 12 है, ये है क्वोशिएंट, और इसका जो रिमाइंडर है वो है 11। फिनिश, कैलकुलेशन बिल्कुल फिनिश। और डियर स्टूडेंट, ज्यादातर ये 12 से 19 तक का जब क्वेश्चन आएगा तभी ये वैलिड है, दूसरे के लिए वैलिड नहीं है। तो हर एक स्टेप के लिए जब हम लोग पर्टिकुलर वाला सीखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल तो ऑब्वियसली सभी में काम आता है, लेकिन उससे भी यदि शॉर्टकट हो सके, जैसे कि कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 2 7 9, इसको यदि मैं डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो क्या ये वाला मेथड फॉलो करूंगा तो ये लंबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 का तो फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता ही है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और डेसिमल एक डिजिट पहले डाल देना है। तो ये वाला मेथड करेंगे क्या, कोई भी चीज के यदि पर्टिकुलर मेथड दिया गया है तो उसको यदि फॉलो करेंगे तो जनरल वाला मेथड से, यूनिवर्सल मेथड से थोड़ा सुपर फास्ट होता है, और जिसमें कोई रूल नहीं लगने वाला उसमें हम लोग जनरल मेथड में करेंगे। आई होप द फंडा इज क्लियर। Yes, sir. Yes, प्रैक्टिस sir. करते हैं। 3 7 9 को डिवाइड करना है मुझे 15 से। सब लोग थोड़ा सा करके दिखाओ, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग, 379 डिवाइडेड बाय 15। Yes, sir. ओके, तो अभी पिछला वाला पेज को ओपन करता हूं और इसका रेफरेंस लेके उसको सॉल्व कर लो। Sir, 25% and 4 remainder. अच्छा, ओके, गुड। एनी हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट, इट्स ग्रेट। 25 and 4 will be the remainder. अच्छा, ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ पीपल। Vivan, I was expecting the answer from you. Raman, only Sir, 2% it has is given me the answer. 25.4 only. अच्छा, you have got the decimal. How you got the decimal? डेसिमल वाला सिस्टम तो अभी तो हम लोग पढ़े ही नहीं है फिर। No, sir. I was नवीन, saying that 25 is that question and 4 is that answer. ओहो, बट यू डोंट यूज द डेसिमल, ओके। जब हम लोग डेसिमल यूज करते हैं तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट।
ओके, लेट अस चेक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -5। सबसे पहले 3 को मैं अंडरग्राउंड, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इज इट? Yes, sir. 3 5 से 15 होगा, लेकिन 7 से 15 नहीं जाने वाला, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, काट के 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे कटा तो एक यहाँ पे जुड़ गया, 17 हो गया। तो फिर क्या होगा, 2 -5 जा -10, तो 17 से 10 गया 7। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 7 5 जा 35, लेकिन 9 से 35 तो नहीं जाने वाला, क्या करेंगे फिर, 7 काट के 6 कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 19। 6 5 जा 30 फिर नहीं जाएगा, 6 बन गया 5, तो यहाँ पे हो गया 29। तो 5 5 जा 25 जाएगा, तो -5 5 जा -25, तो 29 से 25 गया 4, तो आंसर हो गया 25 क्वोशिएंट और 4 रिमाइंडर। बिल्कुल क्लियर है बॉस? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. दैट्स ग्रेट। तो अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन भी करने वाले हैं, सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. चलो, सबसे पहले मेथड ये है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2275 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिजल्ट कितना आएगा? अभी थोड़ा हम लोग यूनिवर्सल मेथड शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है? तो 275 से डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा नॉर्मल मेथड में? सर 30। कैसे किए? सर 9 3 जा 27। ऐसा वाला मेथड थोड़ी ना करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये वाला मेथड करना है। पहला वाला ओल्ड मेथड तो यूज करना ही करना है ना, डिवीजन बाय डिफरेंट डिजिट ऑफ 9 सीरीज। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नंबर कॉपी होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ वाला, इज इट? वही वाला मेथड यूज करेंगे जो इजी हो रहा है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 275, 2 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐड होगा 2 + 7 बिकम 9 उसके बाद फिर क्या होगा, 9 + 5 बिकम 14। 14, लेकिन 14 9 से एक बड़ा है, 14 9 से एक बड़ा है, तो 14 + 1 कर देंगे, तो 14 + 1 हो गया 15, तो रिमाइंडर आ गया 5, और ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 29 + 1 कितना हो गया, 30, तो 30 हो गया Sir, क्वोशिएंट why there was plus और 5 one? हो गया रिमाइंडर। क्या? Sir, why we are doing plus in that 14? +1, ओके गुड। देखो एक्चुअली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो रिमाइंडर थोड़ी ना 2 डिजिट आएगा, तो 9 से तो बड़ा नहीं आना चाहिए रिमाइंडर, उसीलिए 9 से 9 का कितना मल्टीपल है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 1 जा 9 में आ रहा है 14, तो वैसे ही उसीलिए 1 में जा रहा है तो 1 ऐड कर देंगे हम लोग, Yes, sir. ठीक है ना? नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं, 275 ये सभी को पता ही है। 9 कितना जाएगा, 30 9 सर। 3 जा 27, यहाँ पे आ गया 0, डायरेक्टली 5 आएगा, तो 9 0 जा 0, 5 से 0 गया 5, तो हो गया 30 इज द क्वेश्चन एंड 5 इज द रिमाइंडर। फिलहाल ये छोटा क्वेश्चन दिया था 275 वाला, तो इजीली कर लिए, लेकिन जब 10 डिजिट का बड़ा वाला क्वेश्चन दूंगा तो ये वाला मेथड यूज करना, क्लियर है ना? तो अभी हम लोग Yes, शुरू sir. करने वाले हैं बेस मेथड। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बेस मेथड, और ये बेस मेथड में देखो, नॉर्मल मेथड में हम लोग पढ़े थे कि 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा 8 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, तो कैसे करोगे फिर? तो हमको बेस मेथड याद रखना चाहिए ना, वी शुड हैव टू नो द बेस मेथड Yes, एट sir. फर्स्ट। ओके, तो अभी बेस मेथड भी सीखते हैं, उसके बाद 9 सीरीज का मतलब तो खत्म तो हो ही गया, उसके बाद 9 से 8 से 7 से मल्टीप्लाई करने से कैसे कैसे कैलकुलेशन आएगा उसको भी देखेंगे। सबसे पहला चीज है 275 लिखेंगे, 9 सिंगल डिजिट है, तो इसका सिंगल सिंगल में एक एक ग्रुपिंग बनाएंगे, सिंगल सिंगल ग्रुपिंग तो जरूरत नहीं है, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट वाला को यहाँ पे एक तो लाइनिंग खींच देंगे, फाइनल वाला लाइन ना खींच के हम लोग यहाँ पे लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला है वो है हम लोग का डायरेक्टली रिमाइंडर, ठीक है? सबसे पहले 9 लिखेंगे, तो 9 का कंप्लीमेंट क्या है बताओ? 1. 1। ओके, आगे बढ़े हम लोग फिर।
बढ़े Sir. हम लोग आगे? Yes, यस sir. फिल्म में। ओके, तो डायरेक्टली सबसे पहले करेंगे क्या, 2 को हम लोग नीचे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को इसका कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2 को फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 7 + 2 कितना हो गया? Sir, 9. बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फिर 9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? Sir, 9. 9, और 9 को हम लोग फिर यहाँ पे कॉपी मार देंगे, तो कितना हो गया? दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 5 कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। 14. तो फिर 14 9 से एक ज्यादा है कि नहीं? Sir. एक Into ज्यादा है, तो इसको भी 15. एक ज्यादा कर लेंगे, तो ये हो गया 15, और ये 1 इधर जाके क्या हो गया? 10 0 10. और 2 बन गया 3, तो 30.5 आ गया हम लोग का आंसर। ये है बेस मेथड। फिलहाल 9 से डिवाइड किया, और एक क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद और एक बार समझ में आ जाएगा सभी को। Yes, sir. देखो सब लोग, क्वेश्चन 4 2 7 3, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? पहले 9 से करता हूं, उसके बाद 8 से जाएंगे, 7 से जाएंगे, सब चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 9 से करता हूं, तो क्या करेंगे, सभी का एक एक ग्रुप बन गया, तो एक के पहले, एक ग्रुपिंग के पहले मैं बार लगाऊंगा, और यहाँ पे भी एक तो लाइन लगाऊंगा, और यहाँ पे कर दूंगा 9, और 9 का कंप्लीमेंट क्या है? 2। सबसे पहला वाला मेथड ये बोलता है कि 4 को डायरेक्टली Sir, 1. Sir, how 9 complement is 2? Yes, sir. Sir, Sorry, 9 nine- complement will be 1. ओके, बाय मिस्टेकली हो गया था। सो 9 कंप्लीमेंट इज 1, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे पहला वाला मेथड है कि 4 को मैं यहाँ पे नीचे रख दूं, चलेगा? तो पहला Yes, वाला sir. मेथड ये बोलता है कि 4 1 जा, डायरेक्टली 4 लिख दो और दोनों को प्लस कर दो, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6. 6। उसके बाद फिर 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, और फिर यहाँ पे लिख दो, कितना होगा? 6 1 जा 6, तो 7 + 6 कितना हो गया? 13. 13। 13 भी 9 का मल्टीपल से ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है? एक ज्यादा, तो एक प्लस करने की कितना हो गया? 14, तो 4 हो गया हम लोग का डायरेक्टली रिमाइंडर। सॉरी, एक स्टेप में यहाँ पे भूल गया, 13। फिर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा 13, एक स्टेप में भूल गया था, इरेज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक स्टेप छोड़ गया था हम लोग का, 3 छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए Yes, sir. आई एम इरेजिंग इट, नो प्रॉब्लम। इसके बाद और एक बार भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। ओके फाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखे 6 1 जा 6, तो 7 + 6 कितना हो गया? 13 हो गया। तो फिर यहाँ पे जो निकलेगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 1 जा 13, और उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हो गया। सो 13 + 3 कितना हो गया? Sir, 16 हो 16. गया। 16. बिल्कुल क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 4, यहाँ पे आ गया है 6, यहाँ पे आ गया है 13। तो देखो 16 9 का 1 मल्टीपल में आता है, तो 1 प्लस कर दो, कितना हो गया? 17। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले लिखूंगा 7, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पे आ गया 4। तो सबसे पहला वाला 3 डिजिट है क्वोशिएंट, और ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर। एक Yes, बार sir. अच्छे से ध्यान से देख लो, ताकि आंसर और भी समझ में आ जाए और भी इजी हो जाए सब लोग, ठीक है? क्लियर है? Yes, ओके sir. ओके। उसके बाद हम लोग ना 8 से डिवाइड करते हैं, 3 2 7 9, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं अभी 8 से। तो चलो डायरेक्टली 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 लिखेंगे, और 8 का कंप्लीमेंट क्या है? 2। तो शुरू करें अभी। Yes, sir. पहला वाला मेथड क्या है? 3 को डायरेक्टली 3 कॉपी करेंगे, 3 2 जा 6. 6, 2 + 6 8। उसके बाद फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा? 16। 16 को फिर यहाँ पे लिख देंगे 16, तो कितना हो गया? 7 + 16 23, 3.
23 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के कितना होगा? 46। 46 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कितना हो गया? Yes, sir. 55 हो गया। अब बताओ 8 का कितना मल्टीपल है 55? 5 सर 55 6. 8 6 या 48, 8 7 से कितना होगा? 56, और 55 से 56 थोड़ा कम है तो नहीं चलेगा, तो 8 6 जा, ठीक है ना? तो Yes, यहाँ sir. पे कितना आता है? 8 6 जा में जा रहा है, तो 6 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 61। करें कैलकुलेशन? यहाँ पे है, ये आ गया Yes, sir. 3, ये आ गया 8, ये आ गया 23 और ये आ गया 61। तो इसमें से आंसर निकला, सबसे पहला रिमाइंडर 1 है, 6 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, कितना होगा? 9, 2 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो 0 और 3 बन गया 4। 409 इज द क्वेश्चन एंड 1 इज द रिमाइंडर। Yes, sir. तो और एक बार ध्यान से देख लो स्क्रीन को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. 409 जस्ट चेकिंग के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 409 मल्टीप्लाई 8 इट इज इक्वल टू 3272। उसके बाद फिर रिमाइंडर आया है, उसको ऐड करने से फिर हो जाएगा। सो इजी से समझ में आ रहा है ना? इजी। Yes, तो sir. Yes, sir. अभी हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं, और आगे वाला नंबर है 2 डिजिट वाला बेस नंबर। जैसे कि बेस नंबर यदि 100 हो तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एग्जांपल दे रहा हूँ 2307, 2307, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 99 से। इजी मेथड तो बता दिया था कि 99 से डिवाइड करने से कैसा फॉर्मूला होता है, बता Yes, दिया था sir. ना। तो चलो अभी मैं 98 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या करें? डिवाइड करता हूँ, तो कैसे होगा? सबसे पहले 2307, इसको एक बार लगाऊंगा और इसको एक बार लगाऊंगा, और यहाँ पे ये वो बार मतलब रिपीटिंग नहीं है, ठीक है? इसको बस डिवाइड Yes, करने के sir. लिए। तो सबसे पहले इसको मैं 98 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा? सबसे पहले 23 को कॉपी कर देंगे। 98 का कंप्लीमेंट क्या है 100 के बेस पे? 2 2 है। ओके, तो 23 2 जा कितना होगा? 46 46. सीधा ऐड कर दो, कितना होगा? 53। तो यहाँ पे 23 आ गया क्वोशिएंट और 53 आ गया रिमाइंडर। जब हम लोग छोटे छोटे डिजिट कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है थोड़ा कचड़ा टाइप का लगे, क्योंकि उससे भी हमको इजी मेथड लगता है। लेकिन 2307 को 98 इतना बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे और कितना इजीली आंसर निकल गया, देख रहे हो? Yes, sir. दूसरा वाला क्वेश्चन करें। Yes, sir. 4739854238। रेडी हो जाओ, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 97 से। 7. आर यू रेडी? सो कैन यू Yes, डू sir. दिस विथ सुपर फास्ट कैलकुलेशन? सबसे पहले 97 का यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 का ग्रुपिंग बनाता हूँ, हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक तो लाइनिंग और यहाँ पे एक तो लाइनिंग, एंड डायरेक्टली आई एम राइटिंग 97 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? बताओ। 3। तो 3 से हर एक चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला वाला ग्रुपिंग को नीचे डायरेक्टली हो गया 47। 47 3 जा कितना होगा? 141 डायरेक्टली इसको इसके साथ ऐड कर लो, चेक कर लो सही है कि नहीं। yes sir फिर उसके बाद 280 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी होगा इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे। करो। 740 840 Sir, हो रहा है it क्या? is 840, sir. यस, 840 को प्लस कर दो 85 से, कितना होगा? 925, है ना? उसके बाद फिर 925 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना होगा? 1875 2775 ना? Oh, Yes, sir.
Sir, Yes. 39 plus Yes, sir, 141 2775. will be 180. 180. Yes, Yes, sir. yes, correct. This is 180. That's why this much a bigger number was coming. 180 multiplied 3 is equal to 540. I'm little erasing. There is small mistake in the calculation. कोई दिक्कत नहीं, no problem. It happens sometime. So 141 plus 39 is equal to 180. 183 ja 540. So 505 625. Is it? Is it 625? 85 plus Yes, 540 is sir. equal to, okay. So 625 I have written. 625 3 ja how much? 1875. 1875. वेरी गुड. 1875 को 42 से प्लस करो. 1917. Yes, sir. 1917 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको यहाँ पे लिख दो. डायरेक्टली रिमाइंडर निकल जाएगा. 5251. 5254 नहीं निकलेगा. Sir, 5751. Sir, 5751. 5751 करेक्ट. 5751 से 38 को प्लस कर दो, कितना होगा? उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि 97 का कितना नंबर का मल्टीपल है ये. समझ रहे हो ना? इस क्लास को और एक बार भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. बहुत लंबा जा रहा है इस मेथड, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये मेथड बहुत इजी है और इजीली कोई भी चीज को कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिलहाल बहुत बड़ा नंबर ले लिए हैं, उसीलिए इतना लंबा पड़ रहा है. कितना होगा? यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ दो और 2 डिजिट के बदले जो नंबर है वो है 57. तो यहाँ पे 57 टाइम है, तो 57 को प्लस कर दो. ओके. उसके बाद सभी को जितना भी नंबर है उसको लिखते जाओ. आगे बढ़ते हैं फिर. और हर एक जगह 2-2 डिजिट रहेगा. सबसे पहला यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे 46 लिखोगे. 58 इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 75. फिर ये 19 जाके इधर ऐड हो जाएगा. 6 जाके इधर ऐड हो जाएगा. 1 जाके इधर हो जाएगा. ये है इसका क्वोशिएंट और ये है इसका रिमाइंडर. जब ये वाला कैलकुलेशन करते जाओगे ना तो बहुत इजी होने वाला है ये. सही जा रहे हैं हम लोग. वी आर गोइंग करेक्ट. आई होप द फंडा इज क्लियर. Yes, sir. तो आज हम लोग थोड़ा विश्राम लेने वाले हैं.